اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی، ایسی اونٹ میں تھا جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے۔ ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو قامت شخص عمر بن عبد الود بھی تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس اندازے سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہا ہو۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا، سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا۔ عمر بن عبد ود نے کہا، کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے؟ اکرمہ نے کہا، نہیں عمر، پہلے میں جاؤں گا۔ اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پہ جا کے اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد بن ولید کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے، زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، تاریخ دیکھ رہی تھی۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر لگے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا۔ اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں، اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرمہ گرتے گرتے بچا۔ گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی۔ اسے پیچھے سے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرمہ۔ اکرمہ نے پیچھے دیکھا۔ عمر بن عبد الود کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا۔ عمر رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا۔ عمر کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوہری ہوئیں کہ منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمر گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر قلبازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر عمر اٹھا اور پلک جھپکتے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرمہ کے 2 سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کر دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دیں اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے۔ اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرمہ کے 2 اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا، ٹھہر جاؤ، کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد کو بلاؤ، تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ۔ وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم، ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ میں کھلبلی بپا ہو چکی تھی۔ ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی۔ مسلمانوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، پھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمر بن عبد ود نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ عمر نے للکار کر کہا، قسم ہے حبل اور عزا کی، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمر کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمر کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمر گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے۔ غطفان، عینیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ عمر بن عبد ود کی للکار ایک بار پھر گرجی، میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔
खंदक के पार कुरैश का कहकहा बुलंद हुआ और कई भपतियां सुनाई दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा सर से उतारा और हजरत अली के सर पर बांध दिया, फिर अपनी तलवार हजरत अली को दे दी। मौरिख इब्न साद ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगोशी सुनाई थी, अली का मददगार तू ही है मेरे अल्लाह। मौरिखीन ने उस तलवार के मुतालिक जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दी थी, लिखा है कि ये तलवार कुरैश के मशहूर जंगजू मुनब्बिह बिन हज्जाज की थी। वो बदर की लड़ाई में मारा गया था। फातिह मुजाहिदीन ने ये तलवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की थी। आप अलैहिस्सलाम ने उसके बाद यही तलवार अपने पास रखी। अब आप अलैहिस्सलाम ने वही तलवार हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देकर अरब के एक देवकामत के मुकाबले में उतारा। ये तलवार तारीख इस्लाम में जुल्फिकार के नाम से मशहूर हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अमर बिन अब्द वद के सामने जा खड़े हुए। अमर जो घोड़े पर सवार था हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब हुआ, अबू तालिब के बेटे, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बाप मेरा कितना गहरा दोस्त था? क्या ये मेरे लिए बहुत बुरा फेल नहीं होगा कि मैं अपने अजीज दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूं? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ललकार कर जवाब दिया, ऐ मेरे बाप के दोस्त, हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। खुदा की कसम, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूंगा कि अल्लाह को बरहक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो और हम में शामिल हो जाओ। अमर ने कहा, तुमने एक बार कह लिया है, मैं दूसरी बार ये बात नहीं सुनूंगा। मैं ये भी कहूंगा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ अमर, उतर घोड़े से और आ मेरे मुकाबले पे और बचा अपने आप को उस तलवार से जो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। अमर के मुतालिक मौरिख लिखते हैं कि वो वहशी था। जब गुस्से में आता तो उसका चेहरा गजबनाक होकर दरिंदों जैसा हो जाता। वो घोड़े से कूद कर उतरा और तलवार सौंत कर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर पहला वार इतनी तेजी से किया कि देखने वाले ये समझे कि उसकी तलवार ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को काट दिया है, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये भरपूर वार बचा गए। उसके बाद अमर ने यके बाद दीगरे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर मुतअद्दिद वार किए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर वार गैर मुतवक्के पैंतरा बदल कर बचाया। अमर ने ये तो सोचा ही न था कि जिस जिसामत और ताकत पर उसे इतना घमंड है वो हर जगह काम नहीं आ सकती। तेग ज़नी के मार्के में जिस तेजी और फुर्ती का मुजाहिरा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे वो अमर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका जिस्म भारी भरकम था। अगर वो घोड़े को अपने कंधों पर उठा भी सकता था तो भी उसमें घोड़े जैसी रफ्तार नहीं थी। उसकी ताकत घोड़े से ज्यादा भी हो सकती थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर एक भी वार न किया, जिसे अमर ने खौफजदगी समझा होगा। वो वार पे वार करता रहा और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कभी इधर कभी उधर होते रहे। खंदक के पार अहले कुरैश का लश्कर जो कह कहे लगा रहा था यकलख्त खामोश हो गया, क्योंकि उनका देवकामत अमर वार करते करते रुक गया और खामोश खड़ा हो गया था। वो हाँप रहा था। वो गालिबन हैरान था कि ये नौजवान जो कदबुत में उसके जिस्म का 20वां हिस्सा भी नहीं है उससे मरूब क्यों नहीं हुआ। दरअसल अमर थक गया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उसकी ये हालत देखी कि वो अपनी ताकत इतने सारे वार करते करते सिर्फ कर चुका है और हैरान और परेशान खड़ा है, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हैरान कुन मुजाहिरा किया कि तलवार फेंक कर बिजली की सी तेजी से अमर पर झपटे और उछलकर उसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। उसके साथ ही हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमर की टांगों में अपनी टांग ऐसे फंसाई कि वो पीठ के बल गिरा। उसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन उसकी गर्दन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आहनी गिरफ्त से आजाद न हो सकी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी गर्दन से एक हाथ हटाकर कमरबंद से खंजर निकाला और उसकी नोक अमर की शहरक पर रख दी। हजरत अली ने कहा, अब भी मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आ तो मैं तेरी जान बख्शी कर दूंगा। अमर बिन अब्द वद ने जब देखा कि उसकी वो ताकत जिससे अहले अरब लरसते थे बेकार हो गई है, तो उसने ये ओछी हरकत की कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह पर थूक दिया। देखने वाले एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खंजर से उसकी शहरक काट देने की बजाय उठ खड़े हुए। उन्होंने खंजर कमरबंद में उड़स लिया और हाथों से अपना चेहरा साफ किया। अमर अब इस तरह उठा जैसे उसके जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी है। सिर्फ उसे ही नहीं, हर किसी को तवक्को थी कि हजरत अली उसे जिंदा नहीं उठने देंगे, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े आराम से पीछे हटे। उन्होंने कहा, अमर, मैंने अल्लाह के नाम पर तेरे साथ जिंदगी और मौत का मुकाबला किया है, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूक कर मेरे दिल में जाती दुश्मनी पैदा कर दी है।
मैं तुझे जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल नहीं करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुदा को मेरा ये इंतकाम अच्छा न लगे। जा यहाँ से अपनी जान लेकर वापस चला जा। अमर बिन अब्दवद शिकस्त तस्लीम करने वाला आदमी नहीं था। मौर्रिख लिखते हैं कि मैदान में उसकी ये पहली हार थी जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। उसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये ऊंची हरकत की कि तलवार निकालकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर झपट पड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी कामयाबी के लिए रसूल खुदा ने खुदा से मदद मांगी थी। ऐन वक्त पर जब अमर की तलवार और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की गर्दन में 2-4 लम्हों का फासला रह गया, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी ढाल आगे कर दी। अमर का वार इस कदर जोरदार था कि उसकी तलवार ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ढाल को काट दिया। ढाल हजरत अली के कान के करीब सर पर लगी, जिससे खून फूटने लगा। अमर ढाल में से तलवार खींच ही रहा था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की वो तलवार जो उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, इतनी तेजी से हरकत में आई कि अमर की गर्दन कट गई। गर्दन पूरी न कटी, लेकिन शहरग कट चुकी थी। अमर की तलवार उसके हाथ से छूट गई, उसका जिस्म डोलने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस पर दूसरा वार न किया। उन्होंने देख लिया था कि यही वार काफी है। अमर की टांगें दोहरी हुई, उसके घुटने जमीन पर लगे और वो लुढ़क गया। अरब की मिट्टी उसका खून चूसने लगी। खंदक के पार दुश्मन के लश्कर पर ऐसा सुकूत तारी हो गया जैसे पूरे का पूरा लश्कर खड़े खड़े मर गया। अब मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। अरबों की रस्म के मुताबिक इस मुकाबले का दूसरा मरहला शुरू हो गया था। मुसलमानों के एक जैश ने इकरिमा और उसके बाकी सवारों पर हमला कर दिया। कुरैश के उन सवारों के लिए भाग निकलने के सिवा और कोई चारा न था। वो खैरियत से पसपा होने के लिए लड़े। इस मार्के में कुरैश का एक आदमी मारा गया। इकरिमा ने अपना एक घोड़ा खंदक की तरफ मोड़कर भाग निकलने के लिए एड़ लगाई। खंदक फलांगने से पहले इकरिमा ने अपनी बर्छी फेंक दी। उनमें से एक सवार जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्लाह था, खंदक को न फलांग सका। उसका घोड़ा खंदक के अगले किनारे से टकराया और खंदक में जा पड़ा। वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने उस पर पत्थरों की बौछार कर दी और वो वहीं खत्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के उस मकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतजाम कर दिया जाए, क्योंकि वहां से खंदक फलांगी जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने घुड़सवार दस्ते में से चंद एक जांबाज सवार मुंतखब करके खंदक उबूर करने के लिए चल पड़ा। अबू सुफियान ने कहा, खालिद रुक जाओ, क्या तुमने कल इकरिमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहाँ पहरे का और ज्यादा मजबूत इंतजाम कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने की बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रख कर मक्का ले जाओ? खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तुलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। इकरिमा ने खालिद से कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मेरे दोस्त, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज है तो जरूर जाओ। आज मदीने की तरफ जाते हुए खालिद बिन वलीद को वो लम्हे याद आ रहे थे। उसे न उस वक्त ये ख्याल आया था, न आज कि वो ये जानते हुए भी कि खंदक उबूर करके भी मारा जाएगा, न उबूर कर सका तो भी मारा जाएगा, क्यों खंदक की तरफ चल पड़ा था। वो 16 मार्च 627 ईस्वी के दिन का तीसरा पहर था। खालिद बिन वलीद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा। उसने खंदक फलांगने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़े को एड़ लगाई, मगर उस मकाम के पहरे पर जो मुसलमान कहीं छुपे बैठे थे, उन्होंने तीरों का मेह बरसा दिया। खालिद ने लगाम को पूरी ताकत से खींचा और उसका घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीरंदाजों को बुलाया। उसने सोचा था कि उसके तीरंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकते चले जाएंगे, जिससे मुसलमान सर नहीं उठा सकेंगे और वो खंदक फलांग लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीरंदाजी में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बौछारों में तीर चला रहे थे। खालिद को पसपा होना पड़ा। खालिद इस अंदाज से अपने सवारों को वहां से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़ा, जैसे उसने खंदक पर एक और हमला करने का इरादा तर्क कर दिया हो। मुर्रिखीन जिनमें इब्ने हिशाम और इब्ने साद काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि ये खालिद की एक चाल थी। उसने चलते चलते अपने सवार जैश में मजीद सवार शामिल कर लिए। उसने सोचा ये था कि उसे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। उसने उधर देखा, वहां उसे कोई पहरेदार नजर न आया। उसने अपने दस्ते को खंदक के कम चौड़ाई वाले मकाम की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ा दिया। खालिद की ये चाल सिर्फ इस हद तक कामयाब रही कि उसके 3-4 घुड़सवार खंदक फलांग गए। इनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने उन्हें घेरे में ले लिया।
कुरैश के जो सवार अभी खंदक के पास थे उन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि उन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद और उसके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये जिंदगी और मौत का मार्का था जो खालिद ने घोड़ा दौड़ाकर और पैंतरे बदल बदल कर लड़ा। उसके सवार भी तजुर्बेकार और फुर्तीले थे। उनमें से एक मारा गया। खालिद अब दिफाई मार्का लड़ रहा था। उसने कई मुसलमानों को जख्मी किया जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर उसे निकलने का मौका मिल गया और उसका घोड़ा खंदक को फलांग आया। उसके जो सवार जिंदा रह गए थे वो भी खंदक फलांग आए। उसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक के पार जाने की जुर्रत न की। इकरिमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और उनके दीगर इत्तेहादी कबाइल के लश्कर में मायूसी जो पहले ही कुछ कम न थी और बढ़ गई, खुराक न होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान जो अपने और दीगर तमाम कबाइल के लश्कर का सालार आला था, पहले ही हाथ पांव छोड़ बैठा था। खालिद, इकरिमा और सफ़वान ने ये जाहिर करने के लिए कि उनका लश्कर जिंदा और बेदार है, ये कार्रवाई जारी रखी कि वक्तन फवक्तन खंदक के करीब जाकर मुसलमानों की खैमागाह पर तीर बरसाते रहते। इसके जवाब में मुसलमानों ने तीरंदाजों को खंदक के करीब फैला दिया, जो अहले कुरैश के तीरंदाजों पर जवाबी तीरंदाजी करते रहे। तीरों के तबादले का ये सिलसिला सिर्फ एक दिन सुबह से शाम तक चला। अहले कुरैश, गतफान और दीगर कबाइल जिस मोहम्मद को शिकस्त देने आए थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, वो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खुदा ने उन्हें एक अजीम पैगाम देकर रिसालत अता की थी। आप अलैहिस्सलाम ने खुदा से मदद मांगी। खुदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मायूस करता। इसके अलावा मदीना के अंदर मुसलमानों की औरतें और बच्चे दिन रात अपनी कामयाबी और निजात की दुआएं मांगते रहते थे। ये दुआएं कैसे रायगां जाती। 18 मार्च 627 ईस्वी बरोज मंगल मदीना की फजा खामोश हो गई। सर्दी खांसी थी, हवा बंद हो गई, मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई जो इस कदर तेज और तुंद थी कि खैमे उड़ने लगे। झक्कड़ बड़े ही सर्द थे। आंधी की तुंदी और उसकी चीखों से घोड़े और ऊंट भी घबरा गए और रस्सियां तुड़वाने लगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह सिला की पहाड़ी की ओट में थी, इसलिए आंधी उन्हें उतना परेशान नहीं कर रही थी जितना मक्का के लश्कर को। कुरैश खुले मैदान में थे। आंधी उनका सामान उड़ा रही थी। खैमे उड़ गए या लपेट दिए गए। लश्कर के सरदार और सिपाही अपने ऊपर हर वो कपड़ा डालकर बैठ गए थे जो उनके पास था। उनके लिए ये आंधी खुदा का कहर बन गई थी। उसकी चीखों में कहर और गजब था। अबू सुफियान बर्दाश्त न कर सका। वो उठा, उसे अपना घोड़ा नजर न आया। करीब ही एक ऊंट बैठा था। अबू सुफियान ऊंट पर चढ़ बैठा और उसे उठाया। मुअर्रिख इब्ने हिशाम की तहरीर के मुताबिक अबू सुफियान बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा, ए अहले कुरैश, ए अहले गतफान, काब बिन असद ने हमें धोखा दिया है। आंधी हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अब यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है। मक्का को कूच करो, मैं जा रहा हूँ। उसने ऊंट को मक्का की तरफ दौड़ा दिया। खालिद को आज वो मंजर याद आ रहा था। तमाम लश्कर जिसे मक्का से मदीना की तरफ कूच करते देखकर उसका सीना फख्र से फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। अबू सुफियान के पीछे पीछे डरी हुई भेड़ों की तरह जा रहा था। खालिद और अमर बिन अल-आस ने अपने तौर पर सोचा था कि हो सकता है मुसलमान अकब से हमला कर दें। चुनाचे उन्होंने अपने सवार दस्तों को अपने काबू में रखकर लश्कर के अकब में रखा हुआ था। अबू सुफियान ने ऐसे हिफाजती इकदाम की सोची ही न थी। उस पसपा होते लश्कर में वो आदमी नहीं थे जो मारे गए थे, और उस लश्कर में नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु भी नहीं थे। कुरैश का लश्कर चला तो नईम रज़ियल्लाहु अन्हु आंधी से फायदा उठाते हुए खंदक में उतर गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। आज खालिद मदीना की तरफ उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते से उसका लश्कर नाकाम वापस गया था। उसे शेखीन की पहाड़ी नजर आने लगी। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।